Hello students, good morning. Myself Sasi Rai from Green Valley English School. In class 12 political science, we were reading the chapter Challenges to Nation Building. In this chapter, we were reading about the government's approach, how they be able to unite the whole country. After that, we discussed the three approaches which was being done by the forefathers. The very first thing is that our former Deputy Prime Minister of India. So we will start here. Before 15 August 1947, peaceful negotiation had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. लगभग सभी लोग एग्री हो गए थे 15 अगस्त 1947 से पहले कि हाँ, हम इंडिया के साथ अब रहेंगे, वी विल बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. एक्सेशन का मतलब होता है उस पर हमारा अधिकार क्षेत्र. तो लगभग जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी रूलर्स थे, सभी एग्री हो गए थे कि वी विल साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, विच मीन दैट द स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. दे बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. Accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than rest. Kindly understand these four states, or you can say the rulers of these states, they did not provide the same criteria for like others in the previous like the previous kings. So it was quite difficult to access these princely states like Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur. They proved more difficult. The issue of Junagadh was resolved after a plebiscite confirmed people's desire to join India. By the way, what is the plebiscite? This is the new term for you people. What is the plebiscite? Have you ever heard the term in Hindi even Janmat Sangrah? That means the government will provide an election in which it will ask from the people that whether you people want to join India or not. An election will be conducted and people will vote. If majority vote for inclusion, then it will be included in India. If majority will vote for exclusion, it will not be included in India. So the issue of Junagadh was resolved by what medium, but through which methodology? Through plebiscite. You will read about the Kashmir in chapter 8. Here let us know at the case of Hyderabad and Manipur. Now we will read only about the case of Hyderabad and Manipur. Before going further, first of all have a look about this Nizam of Hyderabad, how charming he was at the time, you can see, and along with him he is our very respected. Now we will discuss about the Hyderabad. Hyderabad, the largest of the princely states, was surrounded entirely by Indian territory. Means जो हैदराबाद था वो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट्स था और सराउंडेड था. हैदराबाद बीच में था, इसको सराउंड किया था टोटली इंडियन टेरिटरी ने. सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट्स आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. इवन इतना बड़ा ये स्टेट था प्रिंसली स्टेट्स कि इसके कुछ पार्ट्स मॉडर्न डे में, टुडे आज के समय में, महाराष्ट्र और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं. इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. और इनके जो रूलर थे हैदराबाद के, वो क्या टाइटल यूज करते थे? ही यूज द टाइटल निजाम, और वो उस समय के रिचेस्ट मैन थे. द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद. व्हाट ही डिमांडेड? ही डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद. ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर व्हाइल negotiating with the Indian government, negotiation with the Indian government were going on. That means ये एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में आ गए थे कि हम न पक्ष में जाएंगे न विपक्ष में जाएंगे. वी विल नॉट एग्री टू बी विथ इंडिया और इवन नॉट वी आर अगेंस्ट टू बी विथ इन इंडिया. वो इंडिया के साथ भी नहीं रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं. ऐसा एक स्टैंड स्टिल, एक पॉज मोड कह सकते हैं आप, स्टैचू जिसको आप अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं. तो उस एग्रीमेंट में वो आ गए कि यथास्थिति बनाए रखे कि जैसा चल रहा है अभी रुके रखिए, हम आपके साथ नेगोशिएट करेंगे, जैसा हमारा भाव बनेगा, जैसा हमारा एग्रीमेंट होगा आपके साथ, जैसा हमारा नेगोशिएशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक डिसीजन तक पहुंचेंगे दैट वेदर हैदराबाद इज गोइंग टू ज्वाइन इंडिया और नॉट.
In the meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam's rule gathers force. और जैसे इस समय जब नेगोशिएशन चल रहा था और ठीक उसी समय हैदराबाद स्टेट में निज़ाम के खिलाफ एक फोर्स गैदर हो गई उनके खिलाफ और उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलने लगा. द पिजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन अ पार्टिकुलर वॉज विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑपरेशन रूल. और जो पिजेंट्री थे, जो किसान थे हैदराबाद के, जो निज़ाम के अंडर थे, वो पर्टिकुलरली इनसे त्रस्त थे, वो ऑप्रेस थे, उनको दबाया गया था, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. Women who had seen the worst of this operation joined movement in large numbers, and not even the peasants, the women also were very much what? They were also oppressed. उनको भी दबाया गया था, उनके साथ भी exploitation हुआ था. That's why they also joined in large numbers. Hyderabad town was the nerve center of this movement. The Communist and the Hyderabad Congress were the forefront in the movement. और हैदराबाद था वो जो एपी सेंटर बना हुआ था पूरे मूवमेंट का, वो हैदराबाद सिटी थी, हैदराबाद टाउन था. और इवन द कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस थी, ये दो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये दोनों ही ज़्यादा फोर फ्रंट पे खड़ी थी, ये दोनों ही ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट की थी. द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाई अनलिस्टिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज राजा कार्स ऑन द पीपुल. और इनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स थी निज़ाम की, जिसका वो कहा जाता था राजा कार्स, वो उनके ऊपर हमला कर दी, उनके ऊपर अटैक कर दी. वो उनको खुला छोड़ दिया कि जाओ इस ऑपरेशन को दबाओ, जो चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है, इसको दबाओ. द एट्रोसिटीज एंड कॉम्युनल नेचर ऑफ द राजा कार्स न्यू नो बाउंड्स. और इस जैसा कि सबको पता था कि ये कितना अत्याचार करते थे राजा कार्स जो थे, ये थोड़े कॉम्युनल नेचर के लोग थे, ये नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. यू कैन से they murdered, they maimed, raped, looted and targeting particularly the non-Muslims. और जैसा कि मैं अभी बताया था कि जो राजाकार्स थे वो बेसिकली क्या करते थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको टारगेट किया करते थे. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस समय क्या किया, आर्मी को ऑर्डर किया कि इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए. In September 1948, Indian Army moved into the control of Nizam forces. After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered. और 1948 में सितंबर में हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो वहाँ पे घुसती है और उनके ऊपर पूरा कंट्रोल करती है. आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग, कुछ दिनों की छोटी बहुत झड़प के साथ, लड़ाई के साथ निज़ाम सरेंडर कर देते हैं. एंड दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया. और इस तरीके से हैदराबाद जो है इंडिया का पार्ट बन जाता है. So students, that's all for today. Thank you so much.